طویل انتظار نہایت صبر آزما ہوا کرتا ہے. کیا آپ ہمیں اپنے حالات سے آگاہ کر کے ہمیں اس اذیت سے نجات نہیں دلا سکتے؟ میں تو بہت چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ حکم خدا مانے ہوا. بارہا پہ کے حق نازل ہوئے اور مجھے بابا کو اپنے حال سے باخبر کرنے سے منع فرمایا. نہیں معلوم اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے. آخر یہ وقت وصال کب آئے گا؟ ہمیں تو اس جدائی نے اب جان بلب کر دیا. بابا نابینا ہو چکے ہیں. میں معمور ہوں. مصر میں ابھی میری رسالت ختم نہیں ہوئی. آمون کے اقتدار کو زوال پذیر اور لوگوں کو یکتا پرست ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے. ابھی تو مصر کے مسائل اور مشکلات کی اصلاحات کی گئی ہیں. نہیں، ابھی تو میرے خواب کی تعبیر کے ابتدائی مراحل طے نہیں ہوئے. لیکن ان باتوں کا بابا کو مطلع کرنے یا ہمیں باخبر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ 36 سالوں سے بابا آپ کے فراق میں شب و روز مسلسل گریہ کنا ہے. مجھے بھی نہیں معلوم آخر یہ ہجر و فراق کب ختم ہوگا. تم نے بتایا کہ بابا میرے فراق میں گریہ کنا رہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے بعد تم سے وابستہ ہو گئے. اتنا کہ میری ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں انہیں. وہ میرے چہرے میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ مجھ میں آپ کو ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہی آپ کی خوشبو سونگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں اس فراق کی وجہ اور اس ہجر کے سبب کو سمجھ رہا ہوں. خوب، کیا وجہ ہے؟ تم نے ہمارے جد ابراہیم اور ہمارے چچا اسماعیل کا واقعہ تو سنا ہے نا؟ ہاں، کئی بار. آپ کی مراد اسماعیل کی قربانی کرنے سے ہے؟ بابا کا ماجرا بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. میں تمہیں مصر میں روک لینا چاہتا ہوں. کیا تم راضی ہو؟ ہاں، اگر بہت ضروری ہے تو رک جاؤں گا. مجھے تو آپ کا حکم بجا لانا ہے، پیغمبر خدا کی حیثیت سے بھی اور عزیز مصر کی حیثیت سے بھی. تمہیں یہاں روکنے کی 2 وجوہات ہیں. اول یہ کہ ہجر و فراق کے اختتام کے لیے ہم دونوں اسماعیل کی بابا کو قربانی دینی ہوگی، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب بابا ہم دونوں سے دستبردار ہو جائیں. اور دوسری یہ کہ ہمارے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی. تمہاری حفاظت اور نگہداری میں کوتاہی برتنے کی توبہ، تمہیں گنوا دینے کی توبہ، توبہ خیانت کرنے کی امانت میں، اور تمہاری نگہداری میں کوتاہی برتنے کی توبہ. لیکن مجھے یقین ہے مجھے کھو دینے کے بعد بابا زندہ نہیں بچیں گے. موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. یقین رکھو کہ بابا ایک دن مصر ضرور آئیں گے. وہ 11 ستارے جو میرے بھائی ہیں مصر آ گئے ہیں، لیکن چاند اور سورج کا آنا ابھی باقی ہے. پریشان مت ہو. تمہیں یہاں روکنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں. آیا تم یہاں میرے پاس رکو گے یا نہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ہاں. اب بھائیوں کے پاس واپس جاؤ. انہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ عزیز مصر بتا رہے تھے کہ ہمارا سامان تیار ہے، ہم لوگ چاہیں تو صبح نکل سکتے ہیں. جی بہتر. خدا تمہارے ساتھ. خدا نگہدار. عزیز مصر نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ ہم تو سمجھے کہ بابا کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا. نہیں، پریشان مت ہوں. انہوں نے پہلے تو مجھے صبر و بردباری کی تلقین کی، پھر کہنے لگی کہ اپنے بھائیوں سے کہو کہ ان کی مطلوبہ گندم تیار ہے، چاہے تو آج رات استراحت کریں اور کل روانہ ہوتے وقت دروازہ سوریہ سے گندم وصول کریں. بس اتنا ہی کہا؟ ہاں بس اتنا ہی کہا. کیوں کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا؟ خدایا، میں اپنے بھائیوں کو توبہ کروانے اور بابا کے دل سے اپنے بھائی کی محبت نکالنے کے لیے بنیامین کو یہاں اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں. لہٰذا بنیامین کو یہاں روکنے کے سلسلے میں میری رہنمائی فرما.
अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र व बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्या से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? मुझे चोर मतलूब था, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो बचाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब। मालिक और नेमी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इताअत आली जनाब। ये लो फर्जंदान इस्राइल भी आ गए। सलाम। खुदावंद का दुरूद हो। खुश हो। खुदावंद का दुरूद हो। तुम सलाम। बहुत कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं। मैं कहता हूं रुक जाएं। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है।
क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब जुजार सिफ का जाम जर्री चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमा रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अस खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी और कहाँ ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरूक का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूका माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। माजरा क्या है? खुदा की कसम हम चोर नहीं हैं। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा मेरी मदद करो। रुक जाओ। बिंजामिन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूका माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो।
और बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह हैं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद फुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते, या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबरज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मरने का मकाम है। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए इन फर्जंदान इस्राइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है,
अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेक मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत हमें नहीं है। बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा। जनाब युजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुके, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं।